to attack a political party, a government of India or a political issue and has ultimately accepted our unconditional apology. I know that there are some passages suggesting that he should never have said so in the first place, which is why I think he was quite cognizant of this and he has filed an affidavit to that effect. So I think this is largely a successful result in terms of discharge from the contempt petition. As far as Sabarimala is concerned, to the extent that the majority today refers in the review proceedings the entire matter to a larger bench, a much larger bench, I think there is partial success for our point of view. As you know, I appeared for the board in Kerala and our contention was that faith and feeling in religious terms, which is protected constitutionally under Articles 25 and 26, have to be respected unless very clearly derogable under constitutional limits. To the extent that the review proceedings have referred it to a larger bench, connected with several other matters, some of which also I am appearing in, including Dawoodi Bohra, etc., I think there is a partial recognition that the original Sabarimala judgment may need reconsideration. So there again is partial success. Having said so, I would repeat immediately that though the dissenting judges, Honorable Justices Nariman and Chandrachud, have differed with the arguments I made, I find what is read today in the judgment ringing, profound, very beautifully crafted and clear poetical prose. So I think it's a victory of law and the system and of Supreme Court decision making. I hope and trust that the new bench is constituted in the nearest future and a final decision binding on all is delivered, one way or the other. As you know, yesterday we talked to you at great length about Karnataka. I only want to repeat this much, that to the extent I was defending the Speaker's order, the Supreme Court has yesterday completely upheld all aspects of it. Disqualification upheld, that is by the Speaker, upheld. A resignation cannot preemptively get rid of a disqualification, upheld. A disqualification operates from the day of act or omission, not from the day the order is passed. And lastly, though normally 7 days should be given, it can be curtailed to 2, 3, 4 days if exigencies so require. अभिषेक मनु सिंघवी को यहाँ पर आप सुन रहे थे। सबरीमाला मामले को लेकर तमाम बातें उनकी ओर से बताई जा रही थी, क्या कुछ दलीलें पेश की गई, किस तरह माना गया। आज हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम मामलों पर बड़े फैसले सुनाए हैं। पहला मामला जो है वो राहुल गांधी पर रहा, अवमानना का जो आरोप था उससे जुड़ा हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का जो माफीनामा था उसे मंजूर कर लिया है। राहुल पर कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है बोलकर पीएम मोदी की अवमानना का ये आरोप यहां था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संयम बरतने की नसीहत दी, इस तरह की बयानबाजी ना करें ये कहा। दूसरा मामला राफेल डील से जुड़ा था, जिस पर पुनर्विचार याचिका जो थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। वहीं तीसरा मामला आस्था से जुड़ा, सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा है। अब मामले की जो सुनवाई है वो 7 जजों की संविधान पीठ करेगी। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम फैसले सुनाए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले पर फैसला सुनाया, इसे बड़ी बेंच के पास भेजा गया है, जिसमें 7 जज यहां पर होंगे और जब तक वो फैसला नहीं होता है तब तक जो 28 सितंबर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था वो मान्य तब तक रहना है। दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पर पुनर्विचार याचिका जो यहां पर 3 दायर की गई थी उनको खारिज कर दिया है। और तीसरे फैसले में चौकीदार चोर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत दी है कि वो संयम बरते। सबरीमाला मामले को आपको बता दें, बड़ी बेंच पर भेजे जाने के बाद भूमाता ब्रिगेड के अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी, सुनिए। 2 जज जो तो है वो अभी भी जो है वो अलग निर्णय था, तो 3+2 से ये निर्णय आ रहा था। इसलिए जब अभी फेस्टिवल शुरू होने वाला है तब कहीं ना कहीं और हिंसा हो सकती है, इस निर्णय का विरोध हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर लार्जर बेंच के यहाँ पे ये अगर निर्णय सौंपा है तो मुझे लार्जर बेंच के ऊपर विश्वास है, लेकिन जल्द निर्णय होना चाहिए क्योंकि ये फेस्टिवल आने वाला है और इसमें महिलाओं को जो दर्शन का अधिकार मिलना चाहिए वो तुरंत मिलना चाहिए। तो इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लार्जर बेंच जो निर्णय देगा वो संविधान ने दिया हुआ अधिकार फिर से महिलाओं को मिलवा कर देगा।
और सबरीमाला पर याचिकाकर्ता राहुल ईश्वर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। हमारे साथ राहुल ईश्वर है, उनसे बात करते हैं। राहुल, कैसे देखते हैं आप? ये एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट है, हम सभी विश्वासियों का विजय है। डिवोटीज पर याचिकाकर्ता राहुल ईश्वर से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जरा सुनिए। हमारे साथ राहुल ईश्वर है, उनसे बात करते हैं। राहुल, कैसे देखते हैं आप? ये एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट है, हम सभी विश्वासियों का विजय है। डिवोटीज का विजय है, हम जरूर जीतेंगे और जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। ये आर्टिकल 25 सभी रिलीजन्स को प्रोटेक्शन देता है। एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। स्टे नहीं है मगर फिर भी हम लड़ेंगे और इसी बार भी अगर युवती आया तो हम रेसिस्ट करेंगे, पीसफुल तरीके से रेसिस्ट करेंगे। पिछली बार काफी वायलेंस हुआ था, इस बार क्या वायलेंस होगा? हम क्षमा चाहता है वो वायलेंस के लिए। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, हम क्षमा चाहता है। इसी बार सभी प्रिकॉशंस लेंगे, गांधीयन सभी तरीके से जाएंगे। आखिरी सवाल राहुल भाई, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बड़ी बेंच के लिए गया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम पॉजिटिव वर्डिक्ट सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सभी भाइयों के लिए एक पॉजिटिव वर्डिक्ट चाहता है और आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राहुल ईश्वर जो इस पूरे मामले में रिव्यू पिटीशन दायर करी थी और पूरा अभियान चला रहे थे कि महिलाओं की एंट्री शबरीवाला टेम्पल में ना हो। इस डिसीजन से ये संतुष्ट हैं और इस बार ये वादा भी कर रहे हैं कि अब अगर महिला वहां एंट्री करती हैं, जब तक नया फैसला नहीं आता तब तक कोई हिंसा भी नहीं होगी। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और राफेल मामले पर याचिका खारिज होने के बाद इंडिया न्यूज ने कांग्रेस नेता राशिद अल्वी से बातचीत भी की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी हमारे साथ में हैं। जिस हिसाब से सर हम बात करें, राफेल डील को लगातार इशू आप लोग बना रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, क्योंकि लगातार पुनर्विचार याचिका में कहा जाता है कि जो बंद लिफाफे हैं, सरकार जो डॉक्यूमेंट दे रही है वो कहीं न कहीं बरगला रही है इस मामले को लेकर। तो अब क्या लग रहा है, अगला कदम क्या कुछ? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो मान्य है, सम्मान किया जाता है, लेकिन वो लिफाफे जो सरकार ने दिए हैं उनमें क्या कागजात हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जानता है। लेकिन मेरा मानना है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और जेपीसी की जरूरत अभी भी मौजूद है। लेकिन अब जिस हिसाब से पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, अब क्या उम्मीद लग रही है? क्या लगता है केस डिसमिस हो जाएगा या फिर केस की सुनवाई होगी? देखिए, निश्चित तौर से केस की सुनवाई होगी। रिव्यू का मामला बिल्कुल अलहदा था कि उसको जो लिफाफे के अंदर बंद है उसे वो सही है या गलत है। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बारीकी के साथ उन डॉक्यूमेंट्स को देखेगी और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका सब सम्मान करेंगे। तो साफ तौर पर है कि कांग्रेस को एक बार फिर से उम्मीद है कि राफेल डील का चूंकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जो भी कोर्ट फैसला लेगी उसका सम्मान तमाम नेता करेंगे। कैमरामैन संतोष सिंह के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।